Hello, good afternoon, CBSE students. Today I am going to discuss about the concept of RTI. RTI means it means the freedom of the people to have the access to the government information. Hence, RTI is the political right. Its scope is restricted by the fact the only government is responsible to share the information, and that too of only public relevance. It implies that the citizen and the non-governmental organization should enjoy reasonably free access to all files and documents pertaining to the government operations, decisions, and performance. In other words, it means openness and transparency in the functioning of the government. तो हटे का मतलब क्या हुआ? Means access the information from the government, and it is the right of government, it is the duty of government to give the proper information to the public. कि ये एक पॉलिटिकल राइट है, लेकिन जिसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड बनाया है कि ज़्यादातर ओपननेस उसमें नहीं होता है। कुछ एक्ट में ऐसा होता है कि ओपननेस नहीं होता है, लेकिन हमें राइट दिया गया है एज द कंज्यूमर और ऑल द सिटीजन दैट वी हैव द राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन related to the government formation, government structure. Then RTI and transparency in the government. It is said that the RTI ensures more transparency in the government. The transparency means easy access to the information. It has two aspects. One, it envisages more and more voluntary disclosure of the information on the part of the government. Then the accountability in the ministers and the public servants. We see some websites of the government departments are very informative, whereas the website of the other departments are not. This implies that the public servants in some departments are more open and willingly to make their work more transparent than the others. कि आरटीआई एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, कि जैसे हमने अभी बताया कि आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, कि गवर्नमेंट का काम है इंफॉर्मेशन देना और हमारा हक है कि गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेना। पर उसमें क्या होता है कि उतनी ट्रांसपेरेंसी हमें हर एक मामले में नहीं दिखा देती। कि फॉर एग्जांपल कुछ गवर्नमेंट, हम बोलते हैं कि उसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फॉर एग्जांपल मिनिस्टर्स हो या पब्लिक सर्वेंट्स हो, तो वहाँ पे उनकी इतना ओपननेस सबको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कि जब हम कुछ वेबसाइट सर्च करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो सम वेबसाइट आर मोर इंफॉर्मेटिव, कि कुछ वेबसाइट ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिखाती है या देती है, और कुछ वेबसाइट पे हमें नहीं पता चलता। पर लेकिन जब हम कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब विजिट करने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत आपको, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, वो बहुत ही आपको खुल के जितना भी ट्रांसपेरेंसी खुल के उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, वो पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं। और कुछ लोग आपको नहीं देते। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। The second aspect of the transparency is the citizen power to acquire information from the government. कि उसका एस्पेक्ट क्या है ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल जितने भी सिटीजन थे उसको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दिस enables the citizen to form their opinion, to know more about the government functioning, etc. Here the government is supposed to be responsive. अगर गवर्नमेंट ने ओपनली सब कुछ इंफॉर्मेशन बता दी, तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस हैज टू बी institutionalized. It should not be the result of the goodness and honesty of the some public service. तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होती है, कि ना ही वो किसी पब्लिक सर्वेंट की ज़्यादा ऑनेस्टी और गुडनेस की वजह से क्या उसका रिजल्ट होता है। इट शुड बी एंश्योर्ड बाय द रूल्स एंड नॉट बाय द एक्सेप्शन। वो रूल की तरह उसको फॉलो किया जाता है, एक्सेप्शन की तरह उसको फॉलो नहीं किया जाता। देन आरटीआई एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस. Transparency in the governance makes the government accountable. Default and conversely, secrecy has the very close relation with the corruption, nepotism, इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस एक्सेट्रा। तो जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी सभी जगह पे, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दिखाई देगी। कि जैसे हमने बोला कि कुछ पब्लिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कुछ पब्लिक सर्वेंट हमें नहीं बताते, इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन है,
इनएफिशिएंसी है, इनइफेक्टिवनेस है, नेपोटिज्म है। तो इस मामले में तो बिल्कुल भी आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देगी। फॉर पीपल इन डेमोक्रेसी For people in democracy, the accountability of the government is essential prerequisite for the enjoyment of the right. कि जैसा हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बताया गया है क्योंकि ज़्यादातर हमें पब्लिक अथॉरिटी दी गई है, पब्लिक को ज़्यादा अथॉरिटी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना आपको राइट दिया गया है उतना आप एंजॉय कीजिए. Since the government holds the enormous powers in its hands, and it is necessary that it holds its responsibility. और गवर्नमेंट ज़्यादातर हमको हक दिए गए, हम एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उसका जो पावर है उसको होल्ड करने के लिए गवर्नमेंट के हाथ में होता है. अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टेंड्स टू करप्ट द रूलर्स. कि जो हम बोलते हैं कि जो करप्ट होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो रूल अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टेंड्स टू करप्ट द रूलर्स, कि कभी कभी अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स रूलर्स को करप्ट भी कर देते हैं. देन लॉर्ड एक्शन फेमस वर्ड्स दैट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली ग्रेट मैन आर ऑलवेज बेड मैन. कि हम बोलते हैं कि लॉर्ड एक्शन का एक फेमस उन्होंने कोटेशन दिया, कोट दिया है कि जैसे हम बोलते हैं कि पावर होता है वो करप्ट पे डिपेंड रहता है. कि फॉर एग्जांपल जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसा है, वो लोगों को अपने दम पे नचा सकता है. और जो हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, जितना पावर ज़्यादा होगा उतना उसका हम बोलते एक्सप्लोरेशन भी ज़्यादा होगा. और ग्रेट मैन और ऑलवेज बैड मैन, ये उसका अनुभव है, उसने ये बताया. अंडर स्कोर्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज ऑन दोज हु होल्ड द पावर. कि क्या बताया है कि फॉर एग्जांपल जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज ऑन द हु होल्ड द पावर, और उस पर ही रिस्ट्रिक्शन लगाए जाए जिसके पास पावर होता है. The application field under the RTI Act will remind those in the power time again that they are accountable to the people. Now we will see the background of the India or evolution of India. Independence and after independence. It was obviously utopian to expect that the British would bring any form of openness in their administration. What was the sad was that even after independence, our two decision makers who are our representatives are the bureaucrats who are called public servants. कि जैसे हमें पुलिस की जैसे एक इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश लोगों ने जैसे ब्रिटिश ने हमारे देश पे राज किया था, उसी हिसाब से उन्होंने अपना रूल्स रेगुलेशन बनाया था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया था. लेकिन उन्होंने एक फॉर्म फॉरवर्ड किया था और उसमें ये है कि उसके बाद ब्रिटिश लोग के चले जाने के बाद भी जो हमारे खुद के डिसीजन मेकर है, या हम बोलते हैं कि उसको ब्यूरोक्राट बोलते हैं, जिसको हम पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, उन्होंने फिर से वही जो हम बोलते हैं फॉर्मेट उन्होंने जो बनाया था वो फॉर्मेट उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया. इन इंडिया इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस In India, even after independence, various laws and rules restricted the disclosure of the official information to the people, thus favored the secrecy in the government. कि कुछ हम बोलते हैं कि जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उस पर थोड़ा सा लॉज और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट को सिक्रेसी वहाँ पे द गवर्नमेंट हैज टू कीप सिक्रेसी there, and that they are that Indian Evidence Act, Official Secrets Act, Commission of Inquiry Act, and All India Services Rules 1954, Central Services Rules 1955, and Railway Services Rule 1956. It was inevitable that the people in India would expect the government to be truly accountable and transparent. कि भारतीयों की हमारी एक अपेक्षा होती है कि जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देता है वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. Unfortunately, the decision makers and the bureaucrats not only carry forward the structures and system of the governance and the British, but they also carry forward the culture of secrecy and unresponsiveness also. तो हमारे जो डिसीजन मेकर थे और ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर और सिस्टम उनका फॉलो नहीं किया, फॉलो तो किया पर उसके साथ उनका जो कल्चर था सीक्रेसी, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना है, कुछ सीक्रेट रखना है, अनरिस्पॉन्सिबनेस, ये भी उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया. तो दिस consequently led to the emergence of the people's movement demanding greater transparency and accountability. उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के, हम बोलते हैं कि इमरजेंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, कि लोगों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले नहीं रहे हो, तो उसके लिए लोगों ने एक हम बोलते हैं कि लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया. द पीपल्स मूवमेंट, द डिमांड फॉर द राइट, the demand for the right to the information has taken form of the mass movement at the grassroots level. In Rajasthan, mass-based organization called Mazdur Kisan Shakti Sangathan took initiative to lead the people from very backward region, Bhim Tehsil, the villagers under the leadership of Aruna Roy and others. Aruna Roy and others asserted asserted their right to information by asking for the copies of the bills and the vouchers. The name of the person who had been paid wages mentioned in the muster roll on the construction of the school, dispensary, small dance and community center. तो पीपल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, जैसे कि राजस्थान में एक घटना हुई थी कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले राजस्थान में मास मूवमेंट हुआ था, तो जिसको हम बोलते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन. उन्होंने अपने गवर्नमेंट के खिलाफ एक आवाज़ उठाई कि उनके गवर्नमेंट के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी और उनके जो लीडर थे उनका नाम था अरुणा रॉय और उनके साथीदार भी थे. ये भीम तहसील नाम पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था. उन्होंने क्या बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल हमें मीन्स कभी ऐसा बताया था कि जो पर्सन हु हैज़ बीन पेड वेजेस, कि मस्टर रोल में मस्टर रोल में उनका नाम होना चाहिए कि जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन और स्कूल में या डिस्पेंसरीज में, स्मॉल डैंस पे या कम्युनिटी सेंटर्स बनाने में काम किया था, उनका मस्टर रोल पे उनका नाम होना चाहिए और उनको कितना वेजेस मिलता है ये उसकी कॉपीज के लिए उन्होंने डिमांड किया था. On the paper, such development projects were already completed, but it was common knowledge of the villagers that there was a gross misappropriation of the funds with the roofless school building, dispensaries without walls, dams left incomplete, and community centers having no doors and windows. तो यहाँ पे क्या बताया आपको, रियलिटी में उन्होंने ऐसा पूछा था कि जितने भी लोगों को काम पे रखा गया उनका वेजेस, उनको सैलरी कितना दिया गया है, ये बात उनको पूछना था और जितना भी काम किया उनका पेड मिलना चाहिए था. लेकिन जब दूसरी बात मीन्स पेपर पे, सही पेपर पे उसका मीन्स पेपर पे क्या बताया गया था, रियलिटी कुछ और ही बताई गई. ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है और उसका हम बोलते हैं कि जितना जितना फंड मिला था उसके लिए उसमें से स्कूल बिल्डिंग का काम करवाया गया था, डिस्पेंसरी का काम करवाया गया था, डैम्स का काम कर और डैम्स का आधा ही रह गया और जो कम्युनिटी सेंटर्स है उसके तो खिड़कियाँ और दरवाजे ही नहीं हैं. तो ऐसा सब कुछ पेपर पे दिखा था. After years of knocking at the official door, despite the usual apathy of the state government, MKSS succeeded in the getting photocopies of certain relevant documents. कि बहुत साल के बाद, तो जैसे हम बोलते हैं कि कभी न कभी सत्य की विजय होता है, तो वैसे ऑफिशियल मीन्स बहुत साल लड़ने के बाद जो एमकेएसएस को एक सक्सेस मिला था और उनको एक जो हम बोलते हैं कि उनको जो फोटो कॉपीज चाहिए था
कि फॉर एग्जांपल मस्टर्ड रोल पे सही में कितने लोगों का नाम था, किसको कितना वेजेस मिला, उनका उनको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिला था। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स वॉज क्लियरली ऑब्वियस कि ये जो फंड का उन्होंने मामला बताया था वो ऑब्वियसली झूठा था। In some cases, the muster rolls contain the name of the person who either did not exist or at all or died years before. उन्होंने क्या बताया कि मस्टर रोल पे फॉर एग्जांपल ऐसे लोगों का नाम था, ऐसे इंसानों का नाम था कि जो हाल ही में एग्जिट ही नहीं है और जो मर चुके हैं, ऐसे लोगों का नाम था। मीन्स जो लोग काम करते थे उनको तो पैसा ही नहीं मिलता था। So this incident is more than sufficient to show the importance of the ability of the information for eradicating the malpractices. तो जो लोगों को सूचित किया जाता था, तो ये उनको जो फोटोकॉपीज मिला था, एविडेंस मिला था, उसके लिए वो काफ़ी था। With so many scandals emerging from time to time, and it becomes a vital for the management of the public fund and the survival of the democracy. तो ऐसे बहुत सारे केसेस उस टाइम में सामने आए कि जो फॉर एग्जांपल पब्लिक फंड का जो किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है और डेमोक्रेसी को कितना सर्वाइव करना पड़ता है। MKSS ऑर्गेनाइज्ड द जान सुनवाई पीपल्स हियरिंग फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। कि एमकेएसएस ने एक जान सुनवाई ऐसा हम बोलते कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था जिसको हम बोलते कि जिसमें लोगों की प्रॉब्लम को सुना जाए, और ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ था। दो पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर्स, landless laborers, private contractors were all invited to the listen, respond and each willing to defend themselves. वहाँ पे पॉलिटिशियन को बुलाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको इनवाइट किया गया था, लैंडलेस लेबरर्स थे उनको, फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे उनको बुलाया गया था। को जो सुनना चाहता है उनके साथ रिस्पॉन्स, अगर मजदूरों ने या किसानों ने या कुछ भी बोला है तो उनके लिए रिस्पॉन्स दे सकते हैं, अगर वो चाहे तो खुद को बचा सकते हैं। बट पॉपुलर रिस्पॉन्स वॉज फिनोमिनल, बट द विलेज ऑफिशियल्स एंड द politicians stayed away and remained silent and thereby weakened their position and darkened their image. तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे केसेस हुए कि जो आर्ग्यू किए गए थे, आर्ग्यूमेंट हुई थी, वहाँ पे लोग ज़्यादातर जिन लोगों ने घोटाला किया था वो शांत बैठे थे। बिटवीन द दिसंबर 1994 एंड अप्रैल 1995 सेवरल अदर पब्लिक हियरिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड। 1994 के दरमियान और 1995 के दरमियान कि कुछ ऐसे पब्लिक और हियरिंग्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। द पीपल्स हंगर्स मेड one engineer of the state electricity board to return in the public amount of 15,000 he had extracted from the poor farmer। तो लोगों का मानना ये था, उसमें लोगों ने एक इंजीनियर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। उन्होंने एक हम बोलते हैं कि मूवमेंट स्टार्ट किया था कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो इंजीनियर था उसने पब्लिक में उस किसान को, गरीब किसान को 15,000 रुपये देना चाहिए था। 15,000 रुपये दिए। So this historical movement demand led to the demand for the enactment of the law recognizing right of the information। तो ये हिस्टोरिक मूवमेंट की वजह से उसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से जाना गया। इट ओनली कॉम्प्लीमेंटेड what courts were saying for long, and that right of information was an integral part of the fundamental right of freedom of speech and expression, right to life and personal liberty। तो जैसे कोर्ट में कोई केसेस दर्ज करवाती है तो वो सालों तक चला रहता है, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये फंडामेंटल राइट्स के इंटीग्रल पार्ट में आता है, जिसको आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, राइट टू लिबर्टी दिया गया है, राइट टू लाइफ दिया गया है, पर्सनल लिबर्टी दिया गया है। तो ये उसमें एक्ट आर्टिकल इन्वॉल्व होते हैं। रोल ऑफ जुडिशरी, the Supreme Court of India has in several landmark decisions inter- interpreted this broad guarantee of free speech to include the right to information as well. The Bennett Coleman, the Cooperative Union of India, the leading newspaper publishes challenge the government's policy of restricting and availability of the newsprint its decision and favoring the petitioner. The Supreme Court declared that
The freedom of speech include within it compass right to all citizens to read and inform. तो यहाँ पे क्या बताया था कि जो हम बोलते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये एक्ट ये सबको ऑल सिटीजन इट अप्लाई टू ऑल सिटीजन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बेनेट कोलमैन ने 1970 में एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था। उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूज़ प्रिंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार उसने उस न्यूज़पेपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। और इन इस डिसीजन फेवरिंग द पिटिशनर उसने क्या किया था, जो एक हम बोलते पिटिशनर था उसका फेवर किया था। एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि ये सभी फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी हम बोलते कि सभी सिटीजन को मिलना चाहिए। Then the state of UP, Raj Nare, 1975, a case in which the respondent the respondent had demanded the information relating to the security expenses of then the Prime Minister Indira Gandhi. Court emphasizes the importance of the public right to know the deterrent to the oppression and the corruption. तो इसमें क्या बताएं कि यूपी के एक राज नरेन ने उन्होंने केस दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था कि जितना भी हम बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी को लेके जितना एक्सपेंसेस होता है वो उनको बताया जाए। लेकिन लेकिन उसने क्या किया, द लीगल बेसिस गवर्नमेंट ने क्या किया, कोर्ट एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक राइट टू नो द डिटरेंट ऑपरेशंस एंड करप्शन। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ये बताया कि आपको जानकारी मिलने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपको करप्शन कितना है या हम बोलते कि ऑपरेशन कितना होता है वो जानकारी आपको दे सकते हैं। The legal basis of the right to information was strengthened further during 1980s by the series of new cases। कि हम जब लीगल केसेस की बात करते तो वो उसमें वो सीरीज बढ़ती गई 1980s के दौरान। In S.P. Gupta, the Union of India, the court declared the disclosure of information in regard of functioning of government must be the rule, and the secrecy and exception justified only where the strictest requirement of the public interest so demand। ये एन.सी. गुप्ता थे, उन्होंने क्या बताया कोर्ट में, क्या उन्होंने डिक्लेयर किया कि जितना भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट फंक्शन से लेके वो रूल के हिसाब से बताना चाहिए, लेकिन कुछ सिक्रेसी एंड एक्सेप्शन जस्टिफाइड ओनली बाय स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, कि जहाँ पे सिक्रेसी वहीं पे रखा जाए कि जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट हो, वैसा उन्होंने बताया था। इन 1992 द रिट पिटिशन इन्वॉल्विंग मनुभाई शाह द नोटेड Manubhai Shah, the noted consumer activist, the Life Insurance Corporation of India, the court ruled that the no official medium of information and could transmit one set of view without also providing for the expression of the alternative view, thus widening the range of opinions presented to the public। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया कि मनुभाई शाह एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट थे, और उन्होंने क्या बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, ये दोनों ने मुझे क्या किया, एक डिक्लेयर किया कि नो ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन कुड ट्रांसमिट वन सेट ऑफ व्यू without providing for the expression of alternative view, thus widening the ranges of opinion presented to the public। कि ना ही उसमें एक ही फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैसेज जैसे गवर्नमेंट कोई जब एप्लीकेंट होता है कि जब उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सिर्फ वन सेट ऑफ व्यू में नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ऑल्टरनेटिव व्यूज में मिलनी चाहिए। कि उसके फॉर एग्जांपल ओपिनियन जो होते हैं उसके रेंज ऑफ ओपिनियंस प्रेजेंटेड टू द पब्लिक, कि उसके ओपिनियंस होते हैं उसको पब्लिक को रिप्रेजेंट करना पड़ता है।
Then next point is later development. The social movement in Rajasthan and other states led to the information of National Campaign for the People's Right to Information (NCPRI) in 1996. The second phase in the evolution of RTI movement started in 1996 with the formulation of the draft RTA bill, spearheaded by NCPRI and its subsequent processing by the government and parliament. The various state RTI laws were passed during this period, including Tamil Nadu, Delhi, Maharashtra, Karnataka, Assam, Madhya Pradesh, मध्य प्रदेश, गोवा एंड गोवा। तो जब हम सोशल मूवमेंट जैसे राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, वैसे बाकी के राज्यों में भी नेशनल मूवमेंट मीन्स बाकी के राज्यों में भी पीपल्स मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसको नाम दिया गया नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन (NCPRI). For 1996 में the second phase of evolution of RTI movement started in 1996 with the formulation of draft the RTI bill, कि जो उसमें बोलते हैं कि उसका जो फॉर्मुलेशन था, तो उसमें आरटीआई बिल ड्राफ्ट होना चाहिए और स्पेयरहेडेड बाय द एनसीपीआरआई एंड इज सब्सिक्वेंट। ऐसे पीपल्स मूवमेंट बहुत सारे राज्यों में भी स्टार्ट हो गया था। फाइनली द नेशनल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास इन 2002 कि 2002 में नेशनल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था, लेकिन दिस एक्ट वाज नॉट नोटिफाइड and the newly elected government after the general election in 2004 got the right to the information got the right to the information act passed in parliament 2005। तो आखिर में 2005 में नेशनल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पार्लियामेंट में पास हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ आरटीआई एक्ट में इम्पोर्टेंट है 2005। It defines a public authority as established, constituted, or owned or substantially financed by the funds provided directly or indirectly or controlled। तो कैसे बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल वो पब्लिक अथॉरिटी के लिए आरटीआई हम बोलते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी के लिए एस्टेब्लिश किया गया है, सब्सटेंशियली उसको फाइनेंशियली कि जितना प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको किस तरह से हाँ और कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए ये फीचर्स है। फॉर एग्जांपल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। Then next point is it shall apply to the public authorities, which means any authority or body or institution of self-government established or the constituted by or under the constitution by any law made by appropriate government, any other body own, controller कंट्रोल एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी गवर्नमेंट उसका मतलब कि उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, या शायद कभी कभी सेल्फ गवर्नमेंट के पास होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो तो उसको उसके लिए उसके पास होता है, और कभी कभी प्राइवेट के हाथ में भी होता है। The ambit covers the two houses of the parliament, state legislature, the Supreme Court, High Court, subordinate courts, including their administrative offices, constitutional authorities like Election Commission, Comptroller, ऑडिटर जनरल एंड यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। तो यहाँ पे क्या बताएगा आपको कि जो उसका हम बोलते हैं एम्बिट होता है, उसका एम्बिट कवर्स द टू हाउसेज। उसमें कौन से आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पब्लिक अथॉरिटीज में कौन सा आता है, तो पब्लिक अथॉरिटीज में आता है पार्लियामेंट आता है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज लाइक इलेक्शन कमीशन ये उसमें आता है। ओनली डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट बॉडीज वर्किंग विद इन द कंट्री दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट। तो जो हम बोलते हैं ना कि जो हम आरटीआई और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें से फॉरेन प्राइवेट बॉडीज होती है या डोमेस्टिक
बॉडीज होती है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। आगे क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए तो उसका प्रोविजन उसका सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोविजन आपके पास होना चाहिए। देन फॉर सेकेंड पॉइंट इज इट कास्ट एन ऑब्लिगेशन, it casts an obligation on the public authorities to grant access to the information It casts an obligation of the public authorities to grant access information to publish certain categories of information within 120 days of the enactment। अगर आप एप्लीकेंट हैं, अगर ऑल सिटीजन को ये राइट दिया गया है ना, तो आप एप्लीकेंट हैं तो 120 डेज में उसको पब्लिक ऑथोरिटीज में आप एप्लीकेंट कर सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट on the responsibility about so motu on their own disclosure publication by public authorities has been considered enlarged। तो जो भी अपने हम बोलते हैं कि पब्लिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर वो डिस्क्लोजर आपने पता है तो वो डिस्क्लोजर पब्लिकेशन उसका एनलार्ज करने का काम उसको एनलार्ज करने का काम गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास होता है। द एक्ट लेज डाउन द मशीनरी फॉर द ग्रांट ऑफ एसेस ऑफिस sorry the act lays down the machinery for the grant of access to the information। The public authorities are required to designate the public information offices and assistant public information officers within 100 days of the enactment। अगर आप एप्लीकेंट है तो उसमें अपने जब एप्लीकेशन दिया है तो उसको डिज़ाइन करने का काम कौन करता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स करता है, और उसके बाद वो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को पास ऑन करता है कि जो 100 डेज में उसको एनेक्टमेंट करने के लिए, उसको पास करने के लिए। Then PIO's responsibility is to deal with the request for the information submitted by the citizen and also assist the person seeking information। तो PIOP मीन्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना भी हम सिटीजन से उन्होंने इंफॉर्मेशन चाहिए उनको इंफॉर्मेशन देने का काम वो करते हैं। द प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द ट्रांसफर of request by public authority and another public authority wherein the subject matter is held by the latter। कि जितना भी आपको प्रोविज़न दिया गया है कि फॉर एग्जांपल एक पब्लिक अथॉरिटी से वो जब दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास जाता है तो रिक्वेस्ट के लिए जाता है तो उसमें सब्जेक्ट मैटर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Then next point is the fee for seeking information is reasonable। अगर आपको कोई information चाहिए तो उसकी फीस कितनी है, reasonable है। लेकिन if the fee is not fee is charged from the persons who are below poverty line। अगर कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे, हम बोलते कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है तो उसके पास से फी नहीं लिया जाता। फर्दर द इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ द चार्ज where the response is time limit is not adhered, कि उसमें टाइम लिमिट नहीं होता है। When certain categories of information have been exempted from the disclosure under the section 8 and 9 of the Act, कि the categories by the way of illustration include information likely to affect the security of the state, strategy, scientific and economic interests of the state, detection and investigation of offenses, public order, conduct of international relations,
कैबिनेट पेपर, तो कुछ कैटेगरीज में कि फॉर एग्जांपल कुछ एक्ट में आप इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, आपको नहीं बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी, देन साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, देन डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, पब्लिक ऑर्डर, कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कैबिनेट पेपर, उसके बारे में आपको बताया नहीं जाता है। ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच would cause the breach of the privilege of the parliament, state legislature, and the personal information which has no relationship with the public activity and could cause unwarranted invasion of the privacy of any person also exempted from the disclosure। कि जब हम ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट की बात करते हैं उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दिया जाता है, कि फॉर एग्जांपल जितना भी प्रिविलेज होता है पार्लियामेंट का वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। और सपोज हम बोलते हैं कि किसी अनवांटेड इन्वेंशन ऑफ द प्राइवेसी, कि किसी वजह से कि फॉर एग्जाम्पल किसी का भी डाटा, पर्सनल जो डाटा है वो एक्सपोज नहीं किया जाता है। However, the exemptions provided are not absolute. Withholding of the information must be balanced against the disclosure in the public interest। कि जब हम बोलते हैं कि एग्जेम्पशंस प्रोवाइड नहीं किया जाता, एब्सोल्युटली आपको एग्जेम्पशन और इंफॉर्मेशन हम बोलते हैं कि बैलेंस की जाती है, कि आपको कुछ बताना है या नहीं बताना है, वो पब्लिक दैट एग्जेम्पशन, हाँ मीन्स उसका मतलब होता है कि एग्जेम्पशन आपको जल्दी मीन्स इतना श्योरली ओपनली नहीं बताया जाता है। तो वी शुड स्टॉप हियर।